नमस्कार साथियों। मैं नमस्कार आप साथियों। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी कैन नेवर बी अ पुलिस स्टेट. सुप्रीम कोर्ट stresses importance of bail, issues guidelines to prevent unnecessary arrest and remand. बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी में पुलिस स्टेट नहीं हो सकते हैं और अननेसेसरी अरेस्ट, जो बेकार की गिरफ्तारी होती है, रिमांड होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल bail over jail and issued a slew of guidelines to prevent unnecessary arrest and remand. The judgment in the case Satyendra Kumar Antil versus Central Bureau of Investigation, delivered by a bench comprising Justices Sanjay Kishan Kaul and M.M. Sundaresh, acknowledged that jails in India are flooded with the under trial. See, very important part, कि जो हिंदुस्तान की जेल है वो खचाखच भरी हुई है अंडर ट्रायल से। जेल इन इंडिया आर फ्लडेड विद द अंडर prisoners. The statistics placed before us would indicate that more than 2/3 of the inmates of the prisons constitute under trial prisoners. Of this category of prisoners, majority may not even be required to be arrested despite registration of a cognizable offense, being charged with offenses punishable for 7 years or less. They are not only poor and illiterate, but also would include women. Thus, there is a culture of offense being inherited by many of them, the judgment stated at the outset. तो साथियों, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो 2/3 ऑफ जेल है वो ऐसे लोगों से भरी है जो गरीब है, अनपढ़ है, और उसमें महिलाएं भी बहुत तादाद में है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। एंड द कोर्ट आल्सो सेड दैट द प्रॉब्लम इज कॉज्ड मोस्टली ड्यू टू अननेसेसरी अरेस्ट which are carried out in the violation of section 41 and 41A of the CRPC. And the direction issued in the Arvind Kumar judgment, which is very, very obvious, friends. And it certainly exhibits the mindset and vestige of the colonial India on the part of investigating agency, notwithstanding the fact arrest is draconian measures resulting in curtailment of liberty and thus to be used sparingly. In a democracy, there can never be an impression that it is a police state, as both are conceptually opposite to each other. So, बहुत अच्छी एक ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट जिसमें बेल के लिए द ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को बेल के लिए एक सेपरेट कानून होना चाहिए, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में है। लंदन में ये एक बहुत स्पेशल एक्ट है जो बेल के ऊपर एक टाइम बाउंड वर्किंग करता है। The principle that bail is the rule and jail is the exception has been well recognized through the repeated pronouncement of the court. This is on the touchstone of the Article 21 of the Constitution. Presumption of innocence until proven guilty is another cardinal principle of criminal law. Once again, we have to reiterate that bail is the rule and jail is an exception, coupled with the principle governing the presumption of innocence.
we have no doubt in our mind that this provision is a substantive one, facilitating liberty being the core intendment of the Article 21, the judgment stated. और मैं इसमें ना अभी आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन इशू करी है मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो दे रहा हूँ, ये मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। पर साथियों, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके बहुत सख्त है कि जितनी जो हिंदुस्तान की जेलें हैं उसके अंदर मोर देन 2/3 जो मेजॉरिटी है वो गरीब लोगों की है, इलिटरेट लोगों की है, और उसमें महिलाएं भी शामिल है। और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी डायरेक्शंस इशू करी है। और अर्नेस्ट कुमार की जजमेंट थी, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार 2014 का एक जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, मैंडेटरी बोला था कि 7 साल तक के जितने भी क्राइम या 7 साल से लेस के क्राइम उसमें 41A CRPC का नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है। और अगर बिना नोटिस की ये कोई कार्रवाई होती है तो वो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा, प्लस उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो सकती है, वो टर्मिनेट हो सकते हैं, वो सस्पेंड हो सकते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज को दोहराया है साथियों। और क्योंकि कानून की नॉलेज हमें नहीं होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून की नॉलेज हमें नहीं होती है, इसकी वजह से पुलिस हमें डराती है, धमकाती है कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, परेशान करते हैं। और छोटे छोटे क्राइम में आपको फोन करके थाने बुला लेते हैं और घंटों आपको गैर कानूनी तरीके से बता कर रखते हैं। ये भी अपना अपना अपराध है साथियों। और आपको याद होगा कि प्रवीर सिंह सैनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ ये निर्देश दिए कि हर एक थाने के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जहां भी वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, चाहे वो थाना हो चाहे कोई, हर कोने में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए विद रिकॉर्डिंग, जिसमें 6 मंथ तक की रिकॉर्डिंग जो उनको संभाल कर रखनी पड़ेगी। और जो एसएचओ उसको वो जिम्मेदारी दी गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दी गई है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन इशू बाय द अपेक्स कोर्ट, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may consider the introduction of separate enactment in the nature of the bail and so as to streamline the grant of bail like in United Kingdom। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 2-3 लाइन है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपके काम की है कि द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड देयर ऑफिसर्स आर ड्यूटी बाउंड टू comply with the mandate of section 41 and 41A CRPC and the direction issued by this court in Arnesh Kumar's supra, and the relictions on their part has to be brought to the notice of the higher authorities by the court. The court will have to satisfy themselves on the compliance of section 41 and section 41A of the code, and in non-compliance would entitle the accused for grant of bail. All the state governments and the union territories are directed to facilitate standing orders for the procedure to be followed under 41 and 41A of Criminal Procedure Code, while taking note of the order of the High Court of Delhi dated 7 February 2018 in writ petition C number 7608 of 2018. The standing order issued by the Delhi Police, that is standing order number 109 of 20220, to comply with the mandate of section 41 of the code. There need not to be any insistence of bail application, while the application under section 88, section 170, section 204, section 209 CRPC of the code. There needs to be strict compliance of the mandate laid down in the judgment of this court in Siddharth case, in which it was held that investigating officer need not arrest each and every accused at the time of filing charge। तो साथियों, ये मैंने कुछ जो गाइडलाइंस आपके लिए पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने पढ़ी है, तो इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, और ये पत्थर की लकीर है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर आप CRPC 41 एंड 41A की पालन नहीं करते हैं।
तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अरेस्ट जिसमें 7 साल तक की सजा हो या 7 साल से कम की सजा हो, उसमें अरेस्ट नहीं होगी, उसमें 41A का नोटिस सब किया जाएगा साथियों। ये मैंडेटरी है। हमारे जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर जो वकालत करते हैं, प्लीज आप इस पर ध्यान दें और अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह समझाएं कि ये सब मैंडेटरी चीजें होती है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल एक्सपर्ट, और काफी सारी हम बेल पे काम करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल पे काम करते हैं, क्लीन बेल पे काम करते हैं, रेगुलर बेल पे काम करते हैं, और क्वेश्चन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी पे हम काम करते हैं। साथियों, हमारे तमाम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं जो आपकी मदद के लिए तैयार है कानूनी तौर पे। और मैंने हमेशा कहा है कि जब अगर आपने कोई गुनाह करा नहीं है और अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है तो उससे डरने की जरूरत है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424, 9873005424। इस पर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। पर सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, जिसको मैं टाइम टू टाइम आपके बीच में लेकर आता हूँ, सरल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, और आपकी नॉलेज के लिए, जिससे कि आपकी नॉलेज गेन हो। और अगर आप किसी भी पुलिस अत्याचार से पीड़ित है या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप उसका बखूबी सामना कर सकें, एक दुर्गा के रूप में, एक मजबूत इंसान के रूप में आप उसका सामना कर सकें। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए वीडियो है। इसका कोई भी आपकी कानूनी सलाह से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडेंस होती है जो हम टाइम टू टाइम लाते हैं साथियों। और हमारे एडवोकेट तमाम हिंदुस्तान में फैले हैं। कभी भी कोई भी मैटर में, चाहे वो बेल हो, चाहे वो IPC 304B का मामला हो, दहेज उत्पीड़न हो, दहेज हत्या हो, 498 का मामला हो, 376 का मामला हो, पॉक्सो 6 के मामले हो, इसमें आप जब चाहे मेरे से मदद ले सकते हैं। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद, जय भारत। तो मैं इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ और मैं आके ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज आप उसको लाइक करें, पसंद करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद।